Good morning, everyone. Am I audible? Okay. So last time, how much we have done in the class? Okay. So I think in the last class, we have done till 15 problem, right? Of exercise 3.2a. Okay. Have you all solved those questions once again for practice? I told you as homework, you need to solve that. Okay. So today we'll continue the same exercise 3.2a, question number 16 onwards. So let us start 16th one. I is equal to integration of 1 upon square root of x plus square root of x raised to 3 with respect to dx. Okay. Now think, how can you solve this problem? Giving you 10 seconds to think about it. Yes? Anything getting clicked? Okay, no problem. See, students, in this problem, we are not able to think anything because of these root terms, right? जब तक ये रूट है तब तक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ना, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कुछ, राइट? ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ये रूट एक्स को एक्स रेज टू हाफ लिख सकता हूँ, इसका हाफ होगा तो ये 3/2 हो सकता है, ठीक है? स्प्लिटिंग द रूट मीन्स आई डिडंट गेट यू. What do you mean by splitting the root? I can only do this step. I can just, root की जगह raised to 1/2 लिख सकता हूँ. X raised to 1/2, and here it will be x raised to 3/2. Right? Fine. So I will do a substitution so as to get rid of this root term. Root means power 1/2. Okay. So to remove that power 1/2, what I am doing is I am putting x के जगह पर t square. Hello everyone. अभी तक मैं x के जगह t पुट करता था, बट t पुट करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं ना, इट विल बी t रेज टू हाफ. बट t स्क्वायर पुट करूंगा तो स्क्वायर और वो 1/2 का 2 कैंसिल हो सकता है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम पुटिंग x इक्वल टू t स्क्वायर? फिर इंटीग्रेशन में तो जैसे ही कुछ भी पुट करो उसके बाद क्या करना होता है, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 2t into dt by dx, that dx will come this side. It means in short dx is equal to 2t dt. Okay, so ये जो dx है it will be replaced by 2t dt, x will be replaced by t square. So let's see. So your I becomes dx के जगह हमने लिखा 2t dt. ओके, x के जगह t स्क्वायर, तो t स्क्वायर रेज टू 1/2, t स्क्वायर रेज टू 3/2, right? So here you can see that न्यूमरेटर में 2t बचेगा, यहाँ वाला डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हियर आई विल बी लेफ्ट विथ t and here I'll be left with t cube dt. Correct? I can take t common from the denominator so that I can cancel the numerator वाला t. तो यहाँ पर बचेगा 1 plus t square dt. t कैंसिल, ठीक है, जो 2 कांस्टेंट है उसको अंदर बाहर ले लिया, तो बचेगा 1/1 plus t square. नाउ टेल मी, ये तो एक फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus x square. Whose formula? tan इनवर्स का फॉर्मूला है, करेक्ट? फॉर्मूला नहीं याद है तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं हो सकता है बच्चों. सो इट विल बी 2 tan inverse x plus c, not a tan inverse x, it is tan inverse t plus c. एंड बाद में t के जगह हम t का वैल्यू पुट कर देंगे. अभी t के जगह t का वैल्यू मतलब क्या पुट करेंगे? तो x इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इधर से t क्या मिलेगा? t इज रूट x, देन स्क्वायर उधर जाएगा तो, सो दिस विल बी 2 tan inverse root x plus c. This is your final answer. Have you all understood this problem? So initial that assumption was very important. वो अगर एक बार क्लिक हो गया कि क्या हमको assume करना है, तो फिर ये easy हो जाएगा. Okay. चलो, moving ahead now. Question number 70. Please solve along with me, and if you have any doubt, let me know. 10x raised to 9 into 10 raised to x log 10 whole upon आई थिंक यहाँ पर प्लस है ना 10x raised to 9 के बाद में. हाँ, अपॉन 10 raised to x plus 10 raised to x raised to 10. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट. अगर देखा जाए तो हम एक कोरोलरी यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर है इसका. ठीक है, कैसे? स्टूडेंट्स जस्ट थिंक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. डोंट यू थिंक एग्जैक्टली जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? कैन यू सी दैट?
10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग 10, करेक्ट? तो यहाँ पर है। और x रेज टू 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 इंटू एक्स रेज टू 9। हेलो, समझ में आया क्या आपको? तो ये तो वो हो गया ना, कौन सा वाला प्रॉपर्टी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो कोरोलरी भी कर सकते हैं, और अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो उससे भी वही आंसर आएगा, पूरे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 10 रेज टू एक्स लॉग 10 प्लस 10 एक्स रेज टू 9 dt बाई डी एक्स का dx इधर आ गया और ये dt आ गया, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा ना, ये पूरा और ये पूरा dt बन जाएगा, राइट? और नीचे वाला तो t है। सो देयरफॉर I is equal to integration of 1 upon t dt, which is log of mod of t plus c, which is log of mod of t क्या है? 10 raised to x plus x raised to 10 plus c. So this is your final answer. This was quite easy problem. Isn't it, students? Okay. Moving ahead to the next. Eighteenth one. I is equal to integration of x raised to n minus 1 upon root of 1 plus 4 times x raised to n. Okay. So think, how will you do this? I think this minus 1 is in the power of n ना बच्चों, टेक्स्ट बुक में चेक करो जरा, मेरे में प्रिंटिंग में ऐसा लग रहा है कि इट इज गिवन एट अलग से -1 लिखा, बट वो पावर में है ना। हाँ, तो फिर तो इजी हो गया ना। कैसे इजी हो गया? देखो ना, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव में आएगा ना एक्स रेस टू एन माइनस 1, करेक्ट? सो या तो आप एक्स रेस टू एन को टी पुट करो या तो पूरे को टी पुट करो। क्यों? क्योंकि ऐसे भी मैंने क्या बोला था, अगर जिसको आप टी पुट करो उसके साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट एडिशन है, तो साथ में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट कैन बी एडजस्टेड। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज I'll say put 1 plus 4x raised to n as t. So differentiating with respect to x. 1 का डेरिवेटिव 0, 4 as it is. x raised to n का डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1 dx equal to dt. 4n नहीं चाहिए, उसको उस साइड भेज दिया, anyways it's a constant, तो वो हो जाएगा 1 upon 4n dt. क्लियर है सबको? यहां तक समझा? Okay, fine. Now we will substitute back all these things. So therefore I will become integration of x raised to n minus 1 and dx will together become this, right? So वो हो गया 1 upon 4n dt, बचेगा ऊपर 1
नीचे रूट के अंदर ओनली टी, करेक्ट। अभी 1/√t का इंटीग्रेशन तो हम निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है 4n, तो 1/4n को बाहर लिखा, √t मतलब t⁻², वो ऊपर गया तो t⁻⁻², एंड नाउ उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -½ + 1 करेंगे तो हाफ होगा, प्लस c, करेक्ट। हियर 2 1s are 2 2s are cancel, correct. So I think the final answer will be 1/2 t⁻², that is √t plus c. अब t की जगह जो हमने एज्यूम किया था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो होगा 1/2 रूट ऑफ, क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, 1 + 4x⁻n, so we'll write down that 1 + 4x⁻n, हाँ n भी है, 2n, या plus c. This is your final answer. Everyone understood? Okay, good. Chalo, moving ahead, next question. Question number 19. I equal to integration of 2x + 1 into रूट ऑफ x + 2. अभी दिखने में तो ये नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन लगता है x के टर्म में, बट वी डोंट नो यूवी फॉर्मूला, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों। 2x + 1 into रूट ऑफ x + 2, तो यहाँ पर भी जो टर्म हमको प्रॉब्लम करेगा दैट विल बी द रूट के अंदर जो टर्म है, राइट। अभी अगर मैं सोचूं कि क्या सब्स्टिट्यूट करूं, देखो अगर मैं पूरा रूट लूंगा तो उसके डेरिवेटिव में तो 1/2 रूट आएगा, वो सब तो है नहीं ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बस x + 2 को टी पुट करूंगा। इससे क्या फायदा है, x + 2 को टी पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव में dx आएगा, dx = dt, क्योंकि 1 और 0 हो जाएगा ना, तो dx सिंपली dt से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला t हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसके जगह क्या लिखोगे, तो अगर x + 2 t है तो x = t - 2 लिख सकते हैं ना हम लोग इसके अंदर, तो ये रूट सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। रूट में एक ही सिंगल टर्म बचेगा, √t, वो t⁻½ होगा, वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, तो देखो कैसे करेंगे, पुट x + 2 = t, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो इधर तो 1 + 0 आएगा, इक्वल टू dt/dx, dx इधर आ गया, यानी सिंपली इधर क्या मिल गया आपको, dx = dt। तो बस अब इन सब के साथ हम सब्स्टिट्यूशन ये पूरा अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो x + 2 is t, तो यहां से हम x निकाल लेंगे t - 2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 × t - 2 + 1, इज दैट क्लियर, इनटू रूट ऑफ x + 2 की जगह तो t लिखा है और dx की जगह dt। अब देखना ये कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2t - 2 2s are 4 + 1 एज इट इज इनटू √t मतलब t⁻½ dt, correct. Further this will become 2t -3 हो गया raised to t⁻²। अब मैं इस t⁻² को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना,
तो 2 इंटू टी रेज टू हाफ, तो वो पावर पावर ऐड हो जाएगा ना, ये 1 है, ये 1/2 है, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है डायरेक्ट। और सेकंड टर्म में तो एक ही 3 है, तो उसके साथ एज इट इज हो जाएगा। एंड नाउ यू डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट 2 कांस्टेंट आउट, t रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव 3 रेज टू 3/2 प्लस 1, मतलब 5/2 अपॉन 5/2। यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू टी रेज टू हाफ है, हाफ प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2। ये 5/2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 पहले से है, ये 2/5 हो गया, और ये टी रेज टू 5/2, 3 पहले से है, ये 2/3 हो गया, एंड टी रेज टू 3/2। कुछ कैंसिल हो जाते, कैंसिल करो, तो यहाँ पर आई थिंक 3 गेटिंग कैंसिल, दैट्स ऑल। बाकी सब एज इट इज, राइट। सो योर आंसर विल बी 4/5 t raised to 5/2 minus 2 t raised to 3/2 plus c. Everyone understood? And now you just back substitute, t के जगह हमने जो लिया था x+2, तो x+2 raised to 5/2, x+2 raised to 3/2 plus c. This is your final answer. Got it, students? ओके, ऐसे ही टाइप के 2-3 और सम है इसके अंदर। जैसे अभी नेक्स्ट सम जो है 20th वन, I is equal to integration of x raised to 5 into root of a square plus x square। देखो वैसा ही है ये, अंदर वाले को t पुट करेंगे, अंदर वाले को t पुट करोगे बच्चों, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, यानी x dx आने वाला है। तो x dx मुझे रहना चाहिए ना एक्सप्रेशन में, तो ये x रेज टू 5 है, उसमें एक से एक x साइड में कर दो, यस सर नो। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि x रेज टू 5 को मैं लिखता हूँ x रेज टू 4 इंटू x इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ कि x रेज टू 4 को, क्योंकि देखो मैं स्क्वायर के टर्म्स में पुट करने वाला हूँ ना, तो मैं x रेज टू 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर करता हूँ, x एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, dx इक्वल टू dt। तो आपको मिलेगा 2x dx इज dt। तो 2 तो है नहीं, x है, 2 को उस साइड भेज दो, x dx इज dt अपॉन 2। तो इसका मतलब किसको किसको रिप्लेस कर देंगे, x और dx को dt/2 कर देंगे। अच्छा, यहां से हम x स्क्वायर निकाल सकते हैं कि भाई x स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा t माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डरना नहीं है, वो नंबर है, समझना है, नंबर 2 नंबर 3 बस ऐसा ही है। हाँ, तो अब मेरा आई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हमारा आई था, अभी इसको सब्स्टिट्यूट किया तो आई विल बी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के जगह करना है टी माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हुआ, बट वो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इनटू, इस रूट के अंदर वाले को तो टी पुट करना है, तो ये हो गया रूट टी, और एक्स और डी एक्स मिलकर हो गया डी टी/2। सबको ये स्टेप समझा मैंने कैसे एज्यूम किया और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया?
ओके, अब बस अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर तो टी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ta स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर a रेज टू 4 इंटू रूट टी मतलब t रेज टू हाफ dt बाई 2। इस t रेज टू हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस 1/2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो देखो ध्यान से जरा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, t रेज टू हाफ इंटू टी स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। हेलो एवरीवन देयर विथ मी, माइनस 2a स्क्वायर साथ में लिखता हूँ, कांस्टेंट है, t रेज टू 1 है और t रेज टू हाफ है, तो वो हो जाएगा t रेज टू 3/2 प्लस a रेज टू 4 एज इट इज, वहां तो कोई भी t नहीं है, तो बस t रेज टू 1/t आ जाएगा dt। एंड आई थिंक नाउ आई कैन इंटीग्रेट देम, सेपरेट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन, तो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, t रेज टू 5/2 का होगा 5/2 प्लस 1, तो t रेज टू 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 2a स्क्वायर कांस्टेंट, t रेज टू 3/2 होगा, t रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस a रेज टू 4 कांस्टेंट, t रेज टू हाफ होगा, t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो बस यही आपका आंसर है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, अरेंज करना है टर्म्स को बराबर से। सो यू कैन सी योर दैट 1/2 एज इट इज, 7/2 हो जाएगा 2/7, t रेज टू 7/2 माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज, ये 5/2 ऊपर आके हो जाएगा 2/5, t रेज टू 5/2, फिर a स्क्वायर एज इट इज, a रेज टू 4 एज इट इज, 2/3 हो जाएगा 3/2 ऊपर आके, t रेज टू 3/2। हम देख सकते हैं कि 2 2 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन ले लिया और बाहर का जो 2 है वो कैंसिल हो गया, मैं तो 1/2 को अंदर लेकर गया ऐसे समझो, तो पहले टर्म में बचेगा 1/7 t रेज टू 7/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक 2 बचेगा वहां पर, 2a स्क्वायर बाई 5 t रेज टू 5/2, यहाँ से 2 गया तो बचेगा a रेज टू 4/3 t रेज टू 3/2 प्लस c। समझा मैंने लास्ट स्टेप में क्या किया बच्चों, आइदर यू कैन से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, या तो फिर ऐसा समझो कि 1/2 मतलब अंदर से 2 कॉमन लिया। ठीक है, नाउ यू जस्ट back substitute the value of t, so your final answer will be 1/7 a square plus x square raised to 7/2 minus 2a square by 5 a square plus x square raised to 5/2 a raised to 4/3 a square plus x square raised to 3/2 plus c। तो ये आपका फाइनल आंसर। यस, सबको समझ में आ गया बच्चों? ओके, सो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हम सीख रहे हैं कि हाउ वी नीड टू परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x। तो अभी आई थिंक ये पैटर्न अभी आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या पुट करोगे, जस्ट बताओ मुझे, व्हाट विल यू सब्स्टिट्यूट?
what will you substitute here? Yes, करेक्ट, बिकॉज इसी के पावर में हाफ है ना, तो इसको टी पुट करूंगा तो वो टी रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, राइट, इजी हो जाएगा वो टर्म. So it's absolutely right. It's 2 minus 3x equal to t. And now if you differentiate with respect to x, तो 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का डेरिवेटिव 1 dx इक्वल टू dt. तो इधर से मिला माइनस 3 dx इज dt. सो dx इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 dt. इन सबको हम i के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर i विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ से x निकालना पड़ेगा, तो माइनस 3x उधर गया तो 2 प्लस, सॉरी t इधर आया तो माइनस हो जाएगा ना. सो 2 माइनस t इज 3x. तो इससे पता चलेगा कि x का वैल्यू जो है वो है 2 माइनस टी अपॉन 3. तो जहां भी x है उधर 2 माइनस टी अपॉन 3 कर देंगे, करेक्ट. और यहाँ पर तो हम देखेंगे तो 3x ही है ना यहाँ पर डायरेक्ट, तो वैसा भी कर सकते थे कि 3x की जगह 2 माइनस टी पुट कर दो, राइट. बड़े तो लकीली यहाँ पर 3x है, हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, मैं नॉर्मली x ही पुट करता हूँ, ठीक है. तो ये होगा 5 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स इज 2 माइनस टी अपॉन 3. 2 माइनस 3x की जगह t लिखेंगे तो ये हो जाएगा t रेज टू माइनस 1/2 एंड dx की जगह आएगा 1/-3 dt. सो 1/-3 dt. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर दें. सॉल्विंग इज वेरी इजी. देखो ये 1/-3 कांस्टेंट है, पहले उसको बाहर ले लिया. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 कैंसिल. अब माइनस अंदर जाएगा ऊपर बच्चों, तो साइन चेंज होगा ब्रैकेट के अंदर का, तो वो हो जाएगा -2 एंड देन माइनस माइनस प्लस टी. सो -2 प्लस टी, राइट, इनटू टी रेज टू -1/2 dt. ये क्या हो जाएगा 1/-3 इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 2 इज 3 प्लस टी इंटू टी रेज टू -1/2. अब मैं इस टी के पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये होगा 3 इंटू टी रेज टू -1/2 प्लस टी इंटू टी रेज टू -1/2. अब ये पावर 1 है तो वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो 2 1 2 -1/2 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1/-3 इंटीग्रेशन ऑफ 3t रेज टू -1/2 एज इट इज. ये हो जाएगा t रेज टू 1/2. एंड नाउ आई थिंक आई कैन इंटीग्रेट देम. तो 1/-3 एज इट इज इंटीग्रेट किया मैंने अंदर, 3 कांस्टेंट कॉमन, t रेज टू -1/2 में +1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2/1/2 हो जाएगा, और हाफ में +1 करेंगे तो 3/2, 3/2/3/2 हो जाएगा, करेक्ट. प्लस सी, सिंप्लीफाई अ लिटिल बिट. ये होगा 1/-3. This 2 will go up, so it will be 3 2s are 6 t raised to half. This becomes 2/3 t raised to 3/2 plus c.
चाहिए तो -3 जो बाहर है 1/-3, आई कैन टेक देम इनसाइड ऑल्सो। सो ले लेते हैं हम लोग, तो ये आई थिंक 3 2 हो जाएगा, तो -2 e⁻½ बचेगा, और इधर -2/9 हो जाएगा, t⁻³ plus c. Back substitute the value of t, that was 2 - 3x. So 2 - 3x raised to half बोलो या रूट बोलो, एक ही बात है। माइनस टू माइनस 2/9, 2 - 3x raised to 3/2 plus c. ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझा बच्चों सबको? So last 2-3 problems what we are solving, it is exactly of the same type. सम फंक्शन इनटू कोई एक मल्टीप्लाई कर रहा है फंक्शन में, उसमें कोई पावर है तो उसको हमने टी एज्यूम कर लिया। अभी आगे के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ये ऐसा ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको ही हम टी पुट करेंगे ना, जिसका पावर में कुछ ऐसा 1/2 3/2 है। यहाँ पर जो t⁻² का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, वहां पर वो डिनोमिनेटर में होगा तो डिवाइड होगा, राइट? तो सॉल्व तो इसी तरीके से होने वाला है वो भी। तो आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम टाइप। सो लेट्स सी 22 now. I is equal to integration of 7 plus 4 plus 4x, sorry, plus 5x square whole upon 2x plus 3 raised to 3/2. अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसको आप कुछ भी करोगे तो डायरेक्ट तो सॉल्व ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि रेस टू 3/2 है वहां पर, तो करोगे क्या, राइट? सो क्या करेंगे हम इसके अंदर, बताओ, व्हाट कैन यू डू हियर? यस यस, कम ऑन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, बस मल्टीप्लिकेशन का इधर डिवाइड हो गया है, करेंगे क्या, जो रूट वाला टर्म है उसके अंदर वाले टर्म को पुट कर देंगे हम लोग, और एक्स फाइंड करके उसको एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस न्यूमरेटर में। सो आई एम गोइंग टू पुट 2x plus 3 equal to t. Then next step is always differentiation, differentiating with respect to x. 2 common, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, dt by dx का dx इधर आ गया, इसको सॉल्व किया तो 2 dx is dt, तो 2 तो वहां पर है नहीं, तो 2 को इस साइड भेज दो, dt by 2। अच्छा, हम x भी फाइंड करना पड़ेगा इसमें से, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2x इक्वल टू मिलेगा t - 3, so that will give me x is equal to t - 3 upon 2, right? So now I will substitute all these things in this question. So numerator ध्यान से देखो, 7 plus 4x, x की जगह ये पुट करना है, so t - 3
अपॉन 2 प्लस 5x² एक्स स्क्वायर मतलब t माइनस 3 अपॉन 2 द होल स्क्वायर होल अपॉन, ये तो पूरा t है तो t⁻³ और यहां पर हो जाएगा dx की जगह dt/2। सबको समझा मैंने ये कैसे सब्स्टिट्यूट किया सारा वैल्यूज? ओके, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई देम। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 7 प्लस ये 2 1 जाए 2 2 जा बाहर, ब्रैकेट के बाहर कैंसिल हो सकता है ना, ठीक है। तो अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 2 इंटू टी 2t माइनस 2 3 जा 6, करेक्ट। इधर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि स्क्वायर है तो पहले मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 एज इट इज बाहर, होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2ab, तो 2t इंटू 3 तो 6t प्लस b² इज 9 होल अपॉन 2² इज 4 होल अपॉन t⁻³ इंटू dt/2, करेक्ट। थोड़ा सा ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगा 7 माइनस 6 1, तो 1 प्लस 2t प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ऊपर, तो वो हो जाएगा 5t² माइनस 30t प्लस 45 होल अपॉन 4। ये सब अलजेब्रिक कैलकुलेशन है बच्चों, t⁻³ dt/2। अब देखो, अब न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 का मल्टीप्लाई इस दोनों में करना पड़ेगा। हेलो, हाँ, अब ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये कोई इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8t प्लस एज इट इज लिखेंगे अब ये 5t² माइनस 30t प्लस 45 होल डिवाइड बाई 4, राइट। अब होल डिवाइड बाई 4 है तो नीचे 3/2 भी है, तो 4t⁻³ हो जाएगा इंटू dt/2। सबको समझा ये लास्ट 2 3 स्टेप कैसे कैलकुलेशन किया मैंने? देख लो जरा, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो। ओके, चलो नाउ मूविंग अहेड। अब हमको ऊपर अगर कुछ टर्म सेम है तो उसको ऐड सबट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट। सो दिस विल बिकम 4 और कोई कांस्टेंट यहाँ पर है 45, तो 49 है, t² एक ही टर्म है तो पहले मैं t² लिख देता हूँ। 8t माइनस 30t is minus 22t and 45 plus 4 is 49 होल अपॉन 4 इंटू 2, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो ये हो गया 8 t⁻³ dt, करेक्ट। अभी ये जो 8 है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लूंगा और मैं t⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, t⁻³ हो जाएगा ना। सो देखो अगला स्टेप, तो जैसे पहले क्वेश्चंस में हम करते थे ना, माइनस t का माइनस पावर अंदर मल्टीप्लाई करते थे, वैसा ही हो जाएगा ये। 1/8 बाहर लिखा, 5t² माइनस 22t प्लस 49 एज इट इज, ये t⁻³ ऊपर जाके -3/2 हो गया। अब वो सबके साथ सॉल्व हो जाएगा ना,
समझ रहे हो क्या? इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, सेकंड के साथ सॉल्व हो जाएगा, थर्ड के साथ सॉल्व हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, t⁻2 इंटू t⁻−3/2 डायरेक्ट कर दूं क्या, 2 2 जा 4 -3 1/2 समझ में आ रहा है, -22 t⁻, ये 1 है तो 2 1 जा 2, 2 -3 -1/2। आपको नहीं समझे तो लिखो पहले, बाद में करो। +49 +49 t⁻−3/2 dt, right? And I think now I can integrate them, correct? So it will be 1/8 integration of, sir, it's 4t⁻3/2. Just a minute. Where it is 4? 4 2s are 8, na? This 2 I have multiplied here. And then I have taken that a outside, okay? हाँ, चलो. Now, let us integrate them individually. तो 1/8 तो पहले से कांस्टेंट है, वो बाहर ही है, 5 कांस्टेंट बाहर, t⁻1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 होगा 3/2, so t⁻3/2 upon 3/2 minus 22 as it is, t⁻−½ में +1 करेंगे तो +½ हो जाएगा, तो t⁻1/2 upon 1/2 प्लस 49 इंटू 3 में +1 करोगे तो t⁻−1/2 upon -1/2 प्लस c, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमको, सो ये 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 10/3 हो गया, 10/3 t⁻3/2, ये 2 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 t⁻1/2, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 98 होगा, और t⁻−½ नीचे आएगा तो +½ हो जाएगा, correct? And now we are just going to substitute, right, all these values here, और इस 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, so I think this will be 1/8 into 10/3 t⁻3/2, 44/8 t⁻1/2 मतलब √t, फिर 1/8 into 98 upon √t plus c, सॉल्व करो तो दिस कैन गेट कैंसल, लाइक 2 4s 2 5s, here it will be 4 से कैंसल, 4 1s 4 1s 4 2s, here it can be cancelled with 2, so 2 4s 2 4s and 2 9s, so just write down 5/4 3s 12 t⁻3/2 minus 11/2 √t minus 49/4 1 upon √t plus c, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब बस हमको क्या करना है, t के जगह हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t हमने क्या किया था, x + 3 क्या एज्यूम किया था, 2x + 3 शायद था ना, या 2x + 3, so we'll substitute them, so 5/12 2x + 3 raised to 3/2, 11/2 root of 2x + 3, 49/4 1 upon root of 2x + 3 plus c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो थोड़ा वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने के लिए स्टेप्स बढ़ गए, ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ एग्जीक्यूट किया, बट ऐसे प्रॉब्लम इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना कुछ डिफिकल्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं इसमें, इंटीग्रेशन तो एकदम सिंपल वाले ही टर्म्स है, करेक्ट। और तुम ही देखो ना, हमने बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया एक नया, और बाद में तो जो कर रहे हैं हम लोग ये तो पूरा अलजेब्रिक कैलकुलेशन ही है ना। इंटीग्रेशन तो हमने लास्ट के 2-3 स्टेप्स में किया, एक ही स्टेप में किया, उसके बाद तो हमने फिर वापस से अलजेब्रिक ही किया, राइट। तो देखा जाए तो बेसिक मैथ्स ज्यादा यूज हो रहा है रैदर देन इंटीग्रेशन, राइट। कि टर्म्स को अरेंज कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, वगैरह वगैरह। ओके, चलो we'll move ahead to the next question now. 23rd. I is equal to integration of x square upon root of 9 minus x raised to 6. Now I am not going to tell you what to substitute. You let me know how will you solve, what will you substitute here. Someone is saying 9 minus x. How will you substitute 9 minus x? यहाँ पर 9 minus x है ही नहीं, कहाँ से आया 9 minus x? I cannot see 9 minus x anywhere in the expression. Very good, Akshita. Just hold on. Yes, other people, please reply. So many questions I have solved. So at least now I can expect that you should be able to answer me. Think, थोड़ा सा सोचो, क्या पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। अगर मैं रूट के अंदर का सबको टी पुट कर दिया, हाँ, वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, why don't you all think कि if I put that what will happen? हाँ, 9 minus x raised to 6 को अगर मैंने पूरा टी पुट किया तो डोंट यू थिंक उसके डेरिवेटिव में 6x raised to 5 आएगा। वो x raised to 5 को कैसे एडजस्ट करोगे? डू यू हैव x raised to 5? जो बोल रहे हैं 9 minus x raised to 6 को t पुट करो, जैसा कि हमने अभी पहले के सम्स किए थे, राइट। उसको हम कैसे x raised to 5 कहां से लाएंगे? नो, वी कैन नॉट डू लाइक दैट। You try, you see whether you are able to get, all term adjusted. Simple है, here the numerator says x square and here it is x raised to 6. I know that x raised to 3 के डेरिवेटिव में x square आ सकता है, और मैं इस x raised to 6 को x raised to 3 में easily लिख सकता हूं। yes, कैसे? x square upon root of 9 minus x raised to 3 का whole square, right? So now if I substitute x raised to 3 equal to t, and then if I differentiate it, see what will happen. This is 3x square dx equal to dt. So you got x square dx ना from here, that is dt by 3 d3. तो ये x square का टेंशन गया, और यहाँ पर तो हम पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So therefore your I will become dx की जगह लिख दिया dt by 3, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस एक्स क्यूब टी है,
तो ये हो जाएगा t और ये स्क्वायर, तो 9 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट बच्चों? अभी इसका कैसे करेंगे? तो एक्चुअली ये एक आगे के टाइप में ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या। इसको हम 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, dt/3, उस dt/3 का 1/3 बाहर ले लिया। बच्चों इसके बाद जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ना, ये अभी पढ़ाने वाला हूँ मैं, ये दिस टाइप इज नॉट कवर्ड। In future we will learn there is a type of question and we have a fixed formula that if you have integration of root of a square minus x square, so we have a direct formula for that. हाँ, कोई नंबर है स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला है दैट इज 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला है। हाँ, तो गलती से ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, तो इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, कंसिडरिंग कि आपको ये फॉर्मूला आता है, तो 1/3 तो पहले से कांस्टेंट है, वो तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये तो पहले से है ना, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या बोला, 1/a, ए क्या है यहाँ पर 3, तो 1/3 इंटू साइन इनवर्स x/a, x तो क्या है यहाँ पर t है, a क्या है 3 है, तो t/3 प्लस c। सबको समझा? हाँ? ये फॉर्मूला फॉर टाइम बिंग आप याद रखो, बाद में इसका पूरा अलग से एक्सरसाइज है आने वाला है, और भी इसके अंदर फॉर्मूले ऐड होंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर। नाउ वी विल बैक सब्स्टिट्यूट t के जगह t का वैल्यू, x⁻³ एज्यूम किया था ना, तो x⁻³ अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछो, जस्ट गो थ्रू द सम। स्टार्टिंग में हमने कैसे किया एक्स स्क्वायर को लाने के लिए, करेक्ट, एंड देन द लास्ट 2 स्टेप्स, 2-3 स्टेप्स। ये स्टूडेंट्स समझ गया आप सबको? ओके, so let us go ahead to the next problem now, that is 24th problem. I is equal to integration of 1/x into x³ minus 1 dx। अब ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा थॉट डालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए, तो ही ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सोचो जरा 2 मिनट। चलो आई थिंक मुझे बताना पड़ेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि x³ का डेरिवेटिव में x² आता है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर x² भी नहीं है, करेक्ट, इधर 1/x है। सो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, कैन वी डू वन थिंग, in this expression x into x³ minus 1, can we multiply and divide by x²? ऊपर मैंने x² का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मैंने x² का मल्टीप्लाई किया, तो नीचे जब x² का करूंगा तो वो x into x² x³ हो जाएगा। हेलो,
तो आपको नहीं लगता एक ही स्टेप में एडजस्टमेंट मिल गया मुझे? अब सोचो एक्स क्यूब माइनस वन को टी पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर भी एडजस्ट हो जाएगा और ये एक्स क्यूब भी एडजस्ट हो जाएगा. यस. सो सी व्हाट आई डू, पुट एक्स क्यूब को लिखो या तो जैसा मर्जी, क्योंकि इसको लिखोगे टी तो यहाँ पर टी माइनस वन आएगा. हाँ, तो सपोज एक्स क्यूब को टी लिखा मैंने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, so it will be 3x square dx is dt, so x square dx is dt by 3, right? So substitute them here, so your I will become what? अब देखो जो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर है और dx है उसके जगह मैंने लिख दिया dt by 3, करेक्ट? तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब की जगह t into t minus 1. Have you all understood बच्चों? कैसे किया हमने ये वाला स्टेप? ओके. अब ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ था. इस 1/3 को बाहर एडजस्ट करो. ये जो t इंटू टी माइनस वन है ना बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो न्यूमरेटर 1 है, कैन आई राइट दिस न्यूमरेटर 1 एज t minus 1? देखो जरा ध्यान से, I am trying to bring the denominator in the numerator by some adjustment. See, if you open the bracket, it is going to be minus t plus 1. तो t minus t cancel, ऐसे भी वो 1 ही होने वाला है. हेलो, इससे क्या फायदा होगा? I can now separate them. If I separate them, it will be like t upon t into t minus 1, then minus t minus 1 upon t into t minus 1. Correct? Now you can see एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन टी माइनस 1 और यहां पर बचेगा 1 अपॉन टी डी टी नॉट डी एक्स. एंड आई थिंक अब ये दोनों तो लॉग के फॉर्मूले है ना बच्चों, 1 अपॉन एक्स दोनों इसके जैसे ही है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of mod of t minus 1 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t, यहाँ तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस log of mod t प्लस c. दिस लुक्स लाइक अ फॉर्मूला ना, log a माइनस log b. तो log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b. तो ये हो जाएगा log t माइनस 1 अपॉन t प्लस c. करेक्ट? t को हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की जगह x रेज टू 3 एज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा x रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 3 प्लस c. सबको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया? स्पेशल एडजस्टमेंट फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी तो यू ऑल मैनेज, यू कैन मैनेज, बट द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये multiplied and divided by x square. ओके, सो उसके बाद तो फिर वी हैव जस्ट एडजस्टमेंट, और फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब हमने न्यूमरेटर को एडजस्ट किया, 1 को t माइनस 1 लिखा, दैट वाज इंपॉर्टेंट. ओके, चलो मूविंग अहेड नाउ. क्वेश्चन नंबर 25. ओके, I is equal to, वेरी सिंपल, 1 अपॉन x log x. आप मुझे बताओ मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं बच्चों? मेरे क्वेश्चन खत्म होने के पहले आप बता देने चाहिए. हाँ, there are 3 terms in the denominator, x, log x and log of log x. What should I substitute? Come on, fast. Yes, log of log x. Other people still thinking. Because log of log x में ये पूरा टर्म मिल जाएगा हमको, डेरिवेटिव देखो,
अब देखो डेरिवेटिव जिसका स्ट्रांग होगा वो विजुअलाइज कर पाएगा ना कि कैसे होगा, कि log समथिंग का डेरिवेटिव पहले होगा 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/x log x dx। So don't you think I have that term 1/x log x dx is replaced by dt, और ये तो t है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, राइट। So this I will become 1/t और dt। देख लो जरा आप, ये पूरा dt हो गया और ये जो बचा वो t है, तो ये 1/t हो गया ना बच्चों। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, और अभी t को रिप्लेस कर दो, तो t क्या एज्यूम किया था, log ऑफ log x, तो हो गया आंसर। अंडरस्टूड सब लोग? समझा सबको? Yes. So here we have solved all 25 questions of question number 1. Okay. I have solved all 25 questions because see, all these questions are just basics. आगे के एक्सरसाइज में अभी तो हम देख के बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। आगे के क्वेश्चन में ये किसी क्वेश्चन में इस एक स्मॉल सा पार्ट है ये सब्स्टिट्यूशन वाला। तो मैंने सारे सम इसलिए किए सो दैट आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, यू ऑल्सो सॉल्व अलोंग विथ मी एट होम, ऑल्सो यू विल प्रैक्टिस वन मोर टाइम, so you will gain confidence in the substitution. Okay, so today we have completed the first question of second exercise 3.2a, question number 1. Now next lecture में हम लोग question number 2 start करेंगे। वो भी इसके जैसा ही है, easy है, ठीक है। उसमें थोड़ा ट्रिगो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो सबको जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री था, हाँ, आइडेंटिटी से लेके डीफैक्टराइजेशन तक, आइडेंटिटीज, कंपाउंड, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, सारे फॉर्मूले लर्न करके रिवाइज करके आने। नहीं तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला है सब बाउंसर जाने वाला है, बिकॉज मैं तो सिंपली बोलूंगा दिस फॉर्मूला, बट आपने नहीं याद किया रहेगा तो आपको नहीं वो समझ में आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Okay, so that's all for this exercise and for today.